session of MRCG part 3. So now today what we are going to discuss how you are going to prepare for the exam. That is the most important thing. What how you need to prepare the exam and how the exam comes. And then we will do some practice sessions too so that you can learn in real how you will feel when doing the exam. Okay. So the modules which are assessed in the exam, there are 14 modules and 14 stations will come in the exam. So one station will be from your teaching and research, other from core surgical modules or post-operative care, antenatal care, maternal medicine, management of labor. That means what it means ke management of labor, it means anything related to labor like breech presentation in labor, labor ward prioritization, anything which is related to like labor discussion, what is face presentation, how would you deliver the face presentation. So that will, if this type of a station comes, then it means it will cover your labor and teaching both at the same time. So this is the most important thing that you need to remember. Now management of delivery, anything which is related to at the time of the delivery, they will ask you like patient is fully dilated and you have found like an unexpected undiagnosed breach. That is the most common question they usually ask. Or the patient had cord prolapse at the time of the delivery. Or sometimes they give you again, they combine like labor and delivery and give you like as a single combination of a labor ward prioritization. Postpartum problems can include anything from the time of the delivery to 6 weeks or even more than that, like postnatal, any postnatal complication like hematoma formation, or it could be like anxiety, postpartum blues, psychosis could also be there, and sometimes like third degree perineal tear, fourth degree perineal tear. So you have to counsel the patient that why did it happen and what you are going to do. Will you do an incident report? You have to counsel the patient, and sometimes the patient will come that after she has delivered an IUD baby, so she has come to you as a debrief session that why did this IUD happen with me. So you have to explain her in a very calm and manner, and then you have to take the station that what is going to be your next management plan. So anything after the delivery is going to come in the postpartum period. Subfertility. Now, subfertility is a very good topic because it has very limited stations, and I would say it's a small module, not big like maternal medicine or labor and delivery. Because what it combines like two types of stations. One, it can be a male patient and you have to deal with male infertility, or it's going to be a female infertility cause. It can either be in the ovaries in the form of PCOS, it can either be in the form of ovarian hyperstimulation syndrome. Patient has done the HSG and she has asked you to discuss the report with her. Or she is trying for the baby for 2 years. Now, what are the options for her? So these are few of the stations that come, and sometimes now recently transgender, because new talk articles are coming on this, so this can be one of the expected stations in the upcoming exam course. That so at least we need to prepare this station so when it comes in this exam, you're not confused or you're not prepared for this station. Okay. Then next is the sexual and reproductive health. So sexual and reproductive health, basically what it includes like all the STIs, and sometimes either the patient is going to have the STI or his partner is going to have the STI. And they will say, okay, I don't want to tell the partner about my this condition. So in that situation, you can tell easily the management of STI, which is not a problem because we all have that knowledge. But the problem comes when the patient says that I don't want to inform my partner. So this is the trick, that how you deal with over that time, how you talk with her.
how you reassure her, how you give confidentiality to her. And sometimes you might have to tell the partner because it's important to prevent but treat the partner at the same time. So depending how the station will go, we will practice this in our upcoming sessions. Now, gynecological problems could be any. It starting from heavy menstrual bleeding in adults, it could be in adolescents, and along with that, it can be fibroid uterus, it can be endometriosis, any urinary tract problem. Sometimes they add like hysterectomy. Patient has come with hysterectomy. Now you have to counsel the patient that why did she end up in a hysterectomy when she was not counseled, or you have to tell the steps of any of the procedures. In my exam, I still remember I had like hysterectomy. All the instruments of the vaginal hysterectomy were there on the table. And I had to take each of the instruments and explain them that what are the instruments and how I will perform the vaginal hysterectomy, because that was a recent talk near my exam that came. So any station, so that would be, and I had to talk with my examiner only in 10 minutes. And then the early pregnancy module. Early pregnancy includes like any of the early pregnancy complications. It could be miscarriage, pregnancy of unknown location, ectopic pregnancy, gestation trophoblastic disease, and any cervical changes in the early pregnancy as well. So these are again it's a very small module. And once you learn that what are the patient safety points or what is required in each module according to the scenarios, then this exam will not be very difficult for you. Only problem that we struggle is how we speak, and that we will be learning in our upcoming sessions as well, according to the modules. Then urogynecology. So basically, what comes in urogynecology? The urodynamic studies. The graphs are there. So you have to explain the graphs. What is your interpretation of the graph? Urodynamic studies. It can come as a teaching station. Stress incontinence. Um, Overflowing continence or overactive bladder. These are the common stations which usually comes in this urogyne model. Then oncology. Oncology, it can be any of the cancers. It can be uterine, cervical, ovarian cancer. But what they don't do, they will not ask you that what is the stage of the cancer. Even if they ask you the stage, they will ask you like stage 1, stage 2, not stage 1A1, 1A2. You don't have to tell this in the exam to the patient. What happens, they usually give you the diagnosis that the result histopathology result has confirmed that is a stage 1A1. Now you have to counsel the patient. So first you have to break the bad news. Again, it's most of the time it's like a breaking bad news. And the only thing that is required, you don't need to show your knowledge. You need to show that how you're going to be very sympathetic and empathetic with the patient in this station. Because once you break the news, sometimes she will start crying, sometimes she will not respond. Your patient may not respond at all, the role player. So how you deal at that situation is the most important. That is what they are going to assess you. And most of the time there will be with any of the breaking news, you will find that there will be a lay examiner with it. Now lay examiner, what does lay examiner mean? Lay examiner का मतलब होता है कि आपके स्टेशन में एक आप होते हैं और आपके ऑपोजिट साइड पे आपका एग्जामिनर होता है. आपके नेक्स्ट पे आइदर टू योर लेफ्ट और राइट आपका जो है वो रोल प्लेयर आपके साथ बैठा हुआ होता है. देन ऑन वन साइड ऑन द कॉर्नर एक ले एग्जामिनर होता है. ले एग्जामिनर का मतलब है कि वो डॉक्टर नहीं है, वो कोई और प्रोफेशन से होगा या कोई भी उसका प्रोफेशन नहीं होगा. सिर्फ वो आपको आपको देख रहा है कि अगर मैं आप पेशेंट हूं तो आप कैसे बात कर रहे हैं अपने रोल प्लेयर से. क्या मुझे आपकी सिंपथी नजर आ रही है? क्या मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ? और या मुझे कुछ टाइम चाहिए? और वो जिस स्टेशन में यू विल फाइंड ले एग्जामिनर उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स होते हैं. एंड दो जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स आ गए, देयर आर मोर एंड मोर चांसेस ऑफ यू पासिंग द एग्जाम. और पूरे एग्जाम में यू विल फाइंड इन फोर आउट ऑफ 14 स्टेशन यू विल फाइंड 3 to 4 स्टेशन जिसमें ले एग्जामिनर होगा. कौन से स्टेशन होते हैं वी डोंट नो, बट मोस्टली ब्रेकिंग बैड न्यूज,
You're talking like with an old patient, explaining her about her condition. Yeah, IUD, you're breaking the bad news of an IUD. Any complication, post operative complication, and you're talking to the patient. इन सब में यू विल फाइंड द ले एग्जामिनर, बिकॉज ये आपके जो है वो असेस कर रहे होते हैं कि आप में उसमें अपनी सिंपथी इम्पथी कैसे आप शो कर रहे हैं, कैसे आप बात कर रहे हैं। उसमें आपकी नॉलेज कम असेस होती है, आप कैसे बात कर रहे हैं, कब रुक रहे हैं, ये आप अपनी कंटिन्यूस बोलते जा रहे हैं, उसको पेश रोल प्लेयर को अपना टाइम नहीं दे रहे, स्पेस नहीं दे रहे, दैट उसमें मैटर करता है। उसमें नॉलेज मिनिमम असेस होती है, लेकिन आपकी वे ऑफ टॉकिंग या आप किस तरह से डील कर रहे हैं उस पेशेंट के साथ, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। फिर हम आ जाते हैं आउटसाइड। अब आप क्यूबिकल के बाहर खड़े हुए हैं, तो आपके पास क्या होता है, यू हैव द स्क्रीन, आपके पास एक जो है वॉल सी बनी हुई होती है, उसके ऊपर स्टेशन लिखा हुआ होता है। और एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको कॉलेज जो है वो आपको एक पेंसिल प्रोवाइड करता है और आपको एक पेपर देता है, ब्लैंक वाइट पेपर आपको देता है, ताकि आप उसके ऊपर आप कुछ अपने नोट्स बनाना चाहें उन 2 मिनट्स में, सो यू कैन राइट। सो आपने आउटसाइड द क्यूबिकल, आपने सबसे पहले आपने स्टेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। आपने क्या उसमें से आपने क्या चीज देखनी है कि आपके कौन से डोमेन्स असेस हो रहे हैं, मॉड्यूल आपका कौन सा है, ताकि आपका माइंड उस मॉड्यूल की तरफ आपका माइंड सारा डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि आपने उस मॉड्यूल के बारे में अब जाके सारी बात करनी है। फिर आपने पेशेंट का नाम या अपने रोल प्लेयर का नाम जरूर देखना है, क्योंकि नाम आप मिस्टेक नहीं कर सकते। अक्सर ये होता है कि लोग जो है वो नाम में मिस्टेक कर देते हैं बोलने में। तो आपने नेम को जो है वो पेपर के ऊपर लिख लेना है, सो दैट यू डोंट फॉरगेट कि नाम क्या है। और अंदर में भी आपका सेम स्टेशन जो बाहर है वो अंदर में भी लिखा हुआ होगा, तो आप उसको एक नाम को, अगर आपने फॉर एग्जांपल आप भूल गए लिखने के लिए, तो आपने नथिंग टू वरी, आप अंदर जाइए, रिलैक्स होके बैठिए, उससे बात करिए और अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसको दोबारा देख लीजिए। क्योंकि अगर आपने नाम की मिस्टेक कर दी, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, कि ये पेशेंट सेफ्टी आ जाती है, जिसको हम अभी बात करते हैं। फिर जब आपने 1 मिनट में यू हैव रीड, आपको समझ में आ गया कि स्टेशन आपसे क्या पूछ रहे हैं, देन यू हैव टू प्लान। कि आप हिस्ट्री में आप सोचेंगे कि आपने क्या मेन चीजें आपने पूछनी है, और हाउ यू आर गोइंग टू टॉक इन द मैनेजमेंट प्लान। ये आपने दो चीजें प्लान करनी, क्योंकि एग्जाम में और कुछ भी नहीं आपसे पूछा जाता, आपसे सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड मैनेजमेंट प्लान। यू डोंट हैव टू एग्जामिन द पेशेंट। एग्जामिनेशन अगर आप किसी चीज में जरूरत होगी तो वो आपको फाइंडिंग्स प्रोवाइड करेंगे, यू डोंट हैव टू एग्जामिन द पेशेंट। सो दैट इज गुड कि आपने एग्जामिनेशन का कुछ भी नहीं करना होता, आपको सब कुछ रिटन फॉर्मेट में दिया हुआ होता है वहां पे। ठीक है, ये यूजुअली आपके क्यूबिकल, आपका एग्जाम, ये आपका ए है, आपका वन पार्टिसिपेंट, बी यहाँ पर है, ए यहाँ पे, थर्ड आपका यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे है। मतलब ये आपका पूरा सर्किट 14 का चल रहा होता है। और देखें यहाँ क्यूब के बाहर जो है, क्यूबिकल के बाहर आपका क्वेश्चन पेपर है। देन अंदर जाएंगे, व्हेन यू गो ऑन द सी टेबल, तो आपके टेबल पे भी वही सेम क्वेश्चन लिखा हुआ होता है। So it's a circuit of 14 stations. Each station में आपको outside the cubicle 2 minutes reading time मिलते हैं और 10 minutes आपका performance time होता है। So in total ये एग्जाम जो है 168 minutes का गेम या शो है, जो कि आपने परफॉर्म करना होता है विथआउट एनी ब्रेक। बस, और चलती जाती है, डॉक्टर आपकी गाड़ी चलती जाती है, एंड देन एट द 14 स्टेशन हाँ, व्हेन यू आर डन, इट्स स्टॉप। डॉक्टर अक्सर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता? नहीं, कोई रेजिस्ट्रेशन नहीं होता। हाँ, पहले होता था जबकि ऑनलाइन हो रहा था एग्जाम, अब रेजिस्ट्रेशन, अब फेस टू फेस में कोई रेजिस्ट्रेशन नहीं है, कंटिन्यूअसली चलते हैं। देन इट मस्ट बी टायरिंग। डेफिनेटली टायरिंग होता है, लेकिन जब आपका फर्स्ट स्टेशन शुरू हो जाता है ना, फिर आप उस मोड में आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। 14 पे जब आपको पहुंचते हैं तो आपको लगता ही नहीं है कि 14 पे है। क्योंकि मैंने सारे जो है वो फेस टू फेस दिए थे, तो मुझे भी पहले यही लगता था, नहीं एग्जाम देने से पहले, लेकिन जब दिया एग्जाम तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि 14 हो गया है स्टेशन। वैसे अक्सर आई नो लाइक इट वाज अ डिफिकल्ट जर्नी फॉर यू, सो आई एम होपफुल कि वी विल लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। सो फिर भी डेफिनेटली। हाउ मच ड्यूरेशन एक्चुअली a student should give for a better preparation, like
अच्छी हो फॉर जाए बेटर तैयारी। प्रिपरेशन देखिए, अगर तो आप सिर्फ एग्जाम फोकस करें विथआउट एनी जॉब्स, सो 3 मंथ्स आर इनफ आई वुड से। लेकिन अगर आप विद जॉब करें तो एटलीस्ट 6 मंथ्स दीजिए। ओके। हाँ, इफ आई विल क्योंकि स्टार्ट नो, क्या होता है कि कैन आई असल डू इट प्रॉब्लम इन? क्या होता है कि हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे हॉस्पिटल में गाइडलाइंस प्रैक्टिस नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से। तो हमें रीड करने पड़ते, हमें वो एक्टिंग करनी पड़ रही है, हमारा वो यूज टू नहीं है हम इनके। क्योंकि जब मैं यहाँ पे एग्जामिनर बनी, यहाँ पे जब मैं अपने हॉस्पिटल में एनएचएस में बनी, तो मुझे पता चला कि इन ब्रिटिशर्स का क्या है। दे आर इनके पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, क्योंकि इनके लॉन्ग आवर्स होते हैं, इनके 12 आवर्स की ड्यूटीज होती है। और इनका एडमिन टाइम, इनके ये प्रोजेक्ट्स वगैरह ये बहुत चल रहे होते हैं। लेकिन इधर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस ही गाइडलाइंस हो रही हैं, और ये नॉर्मली अपने पेशेंट से वैसे ही बात कर रहे हैं, तो इनको प्रैक्टिस की डिफिकल्टी नहीं है, इनकी नॉलेज लैकिंग होती है। सो डॉक्टर दैट अक्सा, इज द डिफरेंस, हमारी डॉक्टर, नॉलेज अच्छी होती है, हमारा कम्युनिकेशन लैक कर रहा होता है। कम्युनिकेशन का तो बहुत मसला है। तो बट यू विल एडवाइस हाउ टू ओवरकम दिस? वन थिंग लैंग्वेज बैरियर, सेकंड थिंग कम्युनिकेशन। हम्म देखिए, लैंग्वेज बैरियर कि जब भी आप घर में बच्चों से बात करें या अपने कुलीग से बात करें, कोशिश करें कि बीच में जो है ना वो इंग्लिश में बात करें। क्योंकि इंग्लिश है तो मुश्किल, ऐसा नहीं है कि हमें आती नहीं और ना हमने पढ़ी है, हमने बचपन हमने अपने एमबीबीएस सब कुछ इंग्लिश में ही किया हुआ है। एक मैं कॉमन सी एग्जांपल देती हूँ आप सबके लिए। हम हमेशा बोल रहे होते हैं, ये भी मुझे भी मतलब पता चला था जब मैंने मिस्टेक की थी, फिर ही मुझे ये बात पता चली थी कि हम एग्जाम बोलते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। देखिए, अब इसमें ये लोग जो है ना इस बात को बहुत बुरा मानते हैं। क्यों इसको बुरा मानते हैं? देखिए, आपकी जो तकलीफ है वो मैं नहीं समझ सकती। आप, हाँ, आप मेरे साथ हमदर्दी शो कर सकती हैं कि हाँ भाई ये बहुत मुश्किल हो रहा है, इसको बहुत तकलीफ में है, ऐसा है वैसा है। लेकिन आप मेरी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। तो ये लोग कहते हैं कि जब आप कर नहीं सकते तो वो आप वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। आई हम्म। एक्नॉलेज, वो बोलते हैं कि आप बोले आई एक्नॉलेज या आई अप्रिशिएट दैट यू आर गोइंग थ्रू हार्ड टाइम, यू आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम। तो ये छोटे So, छोटे वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई हाई फाई हमें इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये mm-hmm. पहले So, जब Dr. Aksa, I believe when you will, take your mock session and your course, you will consider our problems, which we specifically in Pakistan face, like the way you are telling, na? So you will made such sentences for us, templates for us, so we can, जी, cram them and reproduce them whenever required. एग्जैक्टली द एम हम फॉर द कोर्स एम इज ये कि आपको प्रोवाइडेड जो है वो लाइंस आपको सिर्फ यू हैव टू प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप में वो फ्लो आ जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आप उसको जो है ना बना के बोल रहे हैं। एग्जाम में ऐसा फील नहीं होगा, सिर्फ आपका काम ये होगा कि बस प्रैक्टिस करते रहें। जब मौका मिले सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लाइंस वही आपने बोलनी है, लेकिन जब आप 10 दफा उस लाइंस को बोल लेंगे तो फिर यू विल बी कॉन्फिडेंट उसके ऊपर। चलें, ये तो बहुत अच्छी टिप हो गई। वैसे मैं खुद भी एज ए कैंडिडेट सजेस्ट करती हूँ, लाइक जो सुन रहे हैं, हमारा मारिया, मरियम आरिफ, रुखसार साल, डॉक्टर साले एंड डॉक्टर एस के, हम्म। हम लोगों को डेफिनेटली मसला होगा, बिकॉज है लैंग्वेज बैरियर। अब ये बात तो नहीं है कि वी डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट हाउ टू स्पीक फॉर M3, दैट मैटर्स। तो जो मेरी थोड़ी बहुत ही जो प्रेपरेशन है, उससे मैंने ये सीखा कि टेम्पलेट्स को अगर आप क्रैम करो ना, अच्छी टेम्पलेट्स को, तो उन्हीं टेम्पलेट्स को आप उस सिमिलर मॉड्यूल में यूज कर सकते हो। जैसे BBN की एक या दो तरह की टेम्पलेट्स आप याद कर लो अच्छे से, तो हर तरह की BBN के स्टेशन पे ना वो आप यूज कर सकते हो। या लाइक अगर आपका SD का स्टेशन है, तो उसी तरह के आप छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं मॉडिफाई करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से बड़ा फायदा हो जाता है कि सिमिलर स्टेशंस का आप एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लो, उसको 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस करो, और फिर ग्रेजुअली उसको मॉडिफाई करते रहो। मतलब इट इज वर्किंग फॉर मी। अब मुझे नहीं पता कि इट विल वर्क इन एग्जाम, वो डॉक्टर अक्सा बता सकती है, क्योंकि दे शी हैज पास दिस एग्जाम। सो क्या, एम आई राइट डॉक्टर अक्सा हियर? जी बिल्कुल यही है, क्योंकि अब देखें पाकिस्तान के लिए सबसे पहले तो इन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी है कि पाकिस्तान में एग्जाम कर लिया। मुझे याद है कि मैं अपना फर्स्ट टाइम एग्जाम देने आई थी यूके में, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव।
फिर चले मैं यहीं पर रह हाँ, गई, वो एक डिफरेंट बात हो गई, लेकिन जब मैं आई थी तो मेरा कॉस्ट बजट बहुत ज्यादा था। और उस वक्त इन्फ्लेशन आई फिर भी रिमेम्बर। इतना नहीं था, अब तो करंट सिचुएशन और खराब होती जा रही है, हर इन्फ्लेशन तो और एक्सपेंसिव हो रही है हर चीजें, सो इट्स नॉट। तो अब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम सब जो है ना इस एग्जाम के लिए फुल प्रिपेयर्ड होके जाएं, कोई लूप होल बिल्कुल छोड़े ही बिल्कुल नहीं बीच में कि हम जो है ना ये मिस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब एक्सक्यूज तो मी, मुझे हेलो। काफी मोटिवेशन फील हो रही है। हेलो जी डॉक्टर अक्सा, कैन आई आस्क क्वेश्चन? मैं ये पूछ जी रही जी। थी कि अगर पासिंग रेट, अगर हम कंपेयर करें यूके से, पाकिस्तान से यूके का, तो वहाँ पे जो रोल प्लेयर या कोई इस तरह का है, तो मेरा ख्याल है वो इजी ना हो जाएगा आपके लिए, कि अगर यहाँ के जो रोल प्लेयर्स होंगे वो डेफिनेटली वो ब्रिटिश और उस तरह का उनका लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन कि ये इस तरह से पूछे या वो करे, तो उससे फर्क अच्छा, पड़ता है, मारिया पड़ेगा मैं अगर आंसर हम दूं? वहाँ अपेयर हो। हाँ हाँ, मारिया बिल्कुल मैं आंसर बिल्कुल करूं? श्योर। हाँ हाँ। मेरी अभी दो तीन जानने वालियों को ना मैंने ले एग्जामिनर के लिए अप्लाई करा है। दे आर नॉट डॉक्टर अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। एंड दे नहीं, विल ये बी ले पाकिस्तान में एग्जामिनर। फर्स्ट टाइम वो होगा वहाँ पे। हाँ, so ले अच्छा, एग्जामिनर और एंड द रोल मॉडल रोल प्लेयर विल बी from will be सही सही Pakistani, so you will सही। understand their accent better. हाँ Otherwise बिल्कुल। when you are appearing, हाँ, तो यूरोपियन कंट्रीज, so उनके accent ही बस समझ नहीं आता। मुझे इस I have एग्जाम heard में ना about it। नॉलेज से ज्यादा मुझे कम्युनिकेशन वाला वो लग रहा है, कि डीलिंग और कम्युनिकेशन वो है इस एग्जाम में, जो सारा जो की है ना इसकी। हाँ हाँ हाँ, नॉलेज बिल्कुल तो बिल्कुल है ऑब्वियसली। बिल्कुल। अच्छा, मैं जो लोग भी सुन रहे हैं ना, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग टू माई ओन कैंडिडेट्स जो आपसी में मेरे साथ थे, उन्हीं को इस लिंक दिया गया है। सो मैं तुम सबसे ये बोल रही हूँ कि मई वाली टाइम तुमने मिस नहीं करनी, ठीक है? क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि नवंबर में होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर ये अब हो रहा है ना मई में, तो ये काफी आपके लिए ना, आपके बजट पे इजी है। वरना जाना आना भी इन इटसेल्फ मुश्किल है। और आई बिलीव कि दिस टाइम ना वो थोड़ा हाथ भी हल्का रखेंगे, और आपको, बिल्कुल आप ज्यादा अच्छे में निकल जाओगे। एक और टिप बताऊं तुम्हें? जब ओएटी पहली दफा हुआ था ना, इतना लो था इनका कि सारे ही पास हो गए थे। अब जैसे जैसे ओएटी नो इम्प्रूव होता गया, तो पासिंग रेट जो है वो ज्यादा होता गया। सो दिस विल बी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, सो आई बिलीव इट विल बी इजी फॉर यू। आप को एक्सेंट इश्यूज नहीं होंगे, और डेफिनेटली वो थोड़े से ना लीनियंट भी होंगे इन मार्किंग। सो डोंट मिस मे अटेम्प्ट इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ डेफिनेटली। थोड़ा ये सा एक काफी इशू ये आता है कि प्रैक्टिकल देखिए बात एक है। रमजान आ जाती है हमारे पास, एक रमजान आ जाती है, लेकिन रमजान हमें बैरियर नहीं बनाना चाहिए कि रमजान में हम एग्जाम कैसे कर, प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि सिर्फ आपने बोलना ही है, आपने ऐसा तो नहीं ना बैठ बैठ के गाइडलाइंस करनी है। 1 घंटा 2 घंटा बोल लिया, प्रैक्टिस कर ली, इनफ है बस आपके लिए रमजान में, चले उसके बाद या उससे पहले जो है वो लग के करें। चलें, जबरदस्त हो गई तो। नहीं, काफी अच्छे की पॉइंट डिस्कस हुए, जो कहते हैं ना, की टू सक्सेस मिल गया है। हाँ नहीं इंशाल्लाह नहीं बिल्कुल तो। सही बात है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ही यही आता है, क्योंकि जब यहाँ पे जब मैं एग्जामिनर बनी ना, हम्म। और मैंने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे मेरे हॉस्पिटल में जो है इन मतलब एक्चुअली जो है मेजर जो है कुछ काफी ज्यादा कैंडिडेट थे, लेकिन एट द एंड जो है वो 5 ही गए, क्यों गए ये तो मुझे उसका नहीं रीजन पता चला, लेकिन आउट ऑफ 5 जो ऑल वर लाइक इधर के ही लोग थे, लोकल पीपल थे, एंड आउट ऑफ देम ओनली 2 पास। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने लोगों को ही ऑलवेज जो है वो पास करते हैं। फिर जब पूछा कि भाई क्यों हुआ था, मतलब अपनी अपना फीडबैक जब आप लेना चाह रहे होते हैं कि कैसा हुआ, तो इनसे भी यही मिस्टेक्स हो जाती है कि हमने जो है ना स्ट्रेस में आ गए थे, पढ़ा नहीं है स्टेशन सही से, अलाइव बेबी को जो है वो आईयूडी बना दिया, तो कौन आपको पास करेगा जब अलाइव बेबी को आप आईयूडी बना दोगे? तो ऐसी ऐसी ब्लंडर्स मिस्टेक्स ये लोग भी करते हैं। इनके पास कम्युनिकेशन अच्छा है, इनकी नॉलेज जो है वो लो होती है, तो ये उससे कवर अप कर लेते, तो हमारी नॉलेज स्ट्रांग है, हमें जो है अपना सिर्फ कम्युनिकेशन वाली चीज के ऊपर वर्कआउट करना होता है तो डॉक्टर कि साहब उस चीज करा को दो हमें ना। बोलना कैसे है, बस सिर्फ ये बात है हमारे लिए। तो आप करा दो। इंशाल्लाह, नहीं नहीं हम सब मिलके करेंगे तो क्यों नहीं, देखे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जब मैंने कर हाँ, लिया तो आप पॉसिबल तो सब भी कुछ कर नहीं सकते हैं, मैं भी पाकिस्तान से ही हूँ, मेरी भी इंग्लिश आपके ही एक्सेंट जैसी है। है। हाँ, और बिल्कुल अक्सर इसमें कभी बिल्कुल। कभी डॉक्टर ऐसा अक्सर, ये भी जो होता है कि इवन जब हम राउंड्स पे होते हैं तो मुझे भी कुछ कुछ इनके एक्सेंट नहीं समझ में आते, तो अक्सर या तो मैं बोलती हूँ कि दोबारा रिपीट कर दें, या अगर लगता है कि
नेक्स्ट में खुद ही वो रिपीट करेंगे तो फिर वेट कर रही होती, मतलब कुछ वर्ड्स इनके होते ही ऐसे हैं जो अब तक मैं खुद भी यूज टू नहीं हुई, तो हम लेकिन ये जो इनको भी डॉक्टर ब्लेम हिरा नहीं ने कर सकते। डॉक्टर हिरा ने जो है ना जनरल, एक जनरल टेम्पलेट्स हों कि उनको आप हर केस में फिट कर सकें, वो वाली ऑप्शन वो भी बहुत अच्छी है कि क्योंकि केस तो हाँ। नहीं अनएक्सपेक्टेड कोई हाँ भी हो देखो, सकता है। टेम्पलेट वही फिट होना होता है। अब देखो, अब जैसे ना एग्जैक्टली। मुझे याद है कि मैं अपने एग्जाम के लिए हर दफा एक ही नाम के साथ प्रैक्टिस करती जाती थी, मतलब रेबिका रेबिका रेबिका। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, एग्जाम में तो हर स्टेशन के ऊपर अलग अलग नाम आएगा, तो हर स्टेशन को अपने अलग अलग इंग्लिश नेम के साथ प्रिपेयर करना है। तो मुझे कि एग्जाम में राइट। हमारा हमने इतनी एक ही नाम की प्रैक्टिस की होती, लगता है वही मुंह से निकलेगा। हाँ हाँ हाँ। तो है तो ये बहुत छोटी सी बात, लेकिन ये बहुत मैटर करती है कि अगर आपने नाम पेशेंट का सही से नहीं लिया तो आपकी पेशेंट सेफ्टी वहीं से चली गई। हाँ, एग्जैक्टली वो फर्स्ट इमेज इज द, वो जो फर्स्ट हाँ इंप्रेशन इज द आपका लास्ट फर्स्ट इंप्रेशन, वहीं इम्प्रेशन भी जो बात है खत्म वो हो जाती है। बिल्कुल वहीं बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल। मेरी भी जो मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो वो यही है कि जो बेसिक यानी आपने ड्रग एलर्जीज का नहीं पूछा है, बेसिक जो सेफ्टी क्वेश्चन वो मिस हो गए। तो वो कंट्रोल ऑफ नर्व्स ही है कि आप स्ट्रेस अपना जरा कंट्रोल में रखें। बाकी आता है सब कुछ, ये सबको ही आता है, इस लेवल पे यहाँ पे पहुंचे हैं माशाल्लाह से। हाँ, क्योंकि तो थ्योरी यही सबसे चीजें मोस्ट प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। हार्ड पार्ट था, थ्योरी वो सब ने क्लियर कर लिया, तो दैट मीन्स हम्म। नॉलेज तो है सबके पास, नॉलेज की तो लैकिंग नहीं है। सिर्फ लैकिंग है तो हमारी जो है वो ये छोटी छोटी बातें जो हमें कोई बताता भी नहीं है। एग्जैक्टली वो ये समझते हैं कि ये आती, यानी बिल्ट इन है, इनको आती होंगी, लेकिन हमारा वो सिस्टम नहीं है ना, वो वाले मैनर्स और वो वाली चीजें नहीं है जो यहाँ पर बेसिक्स है इनकी, कि आपने अप्रोच हाँ, कैसे क्योंकि करना यहाँ है पे और इनका जो मेडिकल स्टूडेंट, फोर्थ ईयर का मेडिकल स्टूडेंट, उनको ऐसा लग रहा होता है उनको ज्यादा आता है मुझसे। मतलब रिफ्लेक्सेस जब बने वो होते हमारे हैं। पास आते एग्जैक्टली। हैं, हमारे इंटर ऑब्जर्वरशिप करने आ रहे होते हैं, तो ऐसा लग रहा होता है कि इनको तो ये चीजें पता। डॉक्टर अक्सर, वी कांट हेयर यू। अ, अब आवाज आ रही यस यस। है? सो ओके, डॉक्टर, थैंक हाँ प्लीज प्लीज कंटिन्यू योर सेशन। यू। ओके, सो हमारे पास जो है बेसिकली एग्जाम में थ्री टाइप्स ऑफ टास्क होते हैं। एक स्टिमुलेटेड पेशेंट टास्क, दैट मीन्स कि आपके पास रोल प्लेयर होगा। स्टिमुलेटेड कोलीग, कि आपके पास आपका कोलीग होगा, जो भी आपका जूनियर कोलीग होगा, और आपका स्ट्रक्चर डिस्कशन विद द एग्जामिनर। हम्म हम्म। सब स्टिमुलेटेड पेशेंट टास्क में क्या आपसे पूछा जाता है, आपके पास सिनेरियो लिखा हुआ होगा जिसमें आपने हिस्ट्री देनी होगी। अगर आपके पास डायग्नोसिस है तो आपने उसको वो लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना होगा, और फिर मैनेजमेंट प्लान बताना होगा। हो सकता है कुछ में आपको सब कुछ दिया हुआ और आपने बोलेंगे कि आप पेशेंट जो है वो हिस्टेक्टमी के लिए जा रहे हैं, टेक कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट, तो आपने कंसेंट लेना होगा। या कोई पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो गई है, बावल इंजरी, ब्लैडर इंजरी, तो आपने उसको डिस्कस करनी होगी। ये बावल इंजरी, ब्लैडर इंजरी, यूरेट्रिक इंजरी, ये मोस्टली जो है आपके स्ट्रक्चर डिस्कशन में भी आ सकते हैं, और ये आपके जो है वो रोल प्लेयर के साथ भी आ सकते हैं। फिर ब्रेकिंग बैड न्यूज, या एंग्री पेशेंट है, या उसके कोई घर में से आया हुआ है कि क्यों मेरे पेशेंट के साथ जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो आपने उसके साथ बात करनी होती है। फिर स्ट्रक्चर डिस्कशन में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप जो है एग्जामिनर से बात कर रहे होते हैं तो आपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात कर सकते हैं, आपने जार्गन्स आप यूज कर सकते हैं, मेडिकल जार्गन्स। लेकिन जब आप पेशेंट के साथ बात करें या अपने रोल प्लेयर के साथ बात करें तो आपने मेडिकल जार्गन्स यूज नहीं करने। जैसे आप ब्लैडर बोल सकते हैं, यूट्रस बोल सकते हैं, बावल्स बोल सकते हैं, ये कॉमन वर्ड्स इनको पता है क्योंकि यहाँ पे ये कॉमनली ये लोग यूज कर रहे होते हैं। वजाइना बोल सकते हैं, या कुछ बोलते हैं कि डाउन बिलो, तो दोनों ठीक है क्योंकि आपके पेशेंट्स को, यहाँ के लोगों को ये पर्ट इनके लिए ये नॉर्मल है। लेकिन जब एग्जामिनर के साथ बात करें तो आपका इजी होता है, और स्ट्रक्चर डिस्कशन आपके 3 या 4 आते हैं पूरे सर्किट में। तो केस सिनेरियो हो सकता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ यूरोडायनामिक्स चार्ट्स हो सकते हैं, आपके पास जो है कभी कभी ऑडिट दिया हुआ होता है, ऑडिट के ग्राफ होते हैं, वो आपने एक्सप्लेन करने होते हैं बस उस एग्जामिनर को। लेबर वार्ड प्रायोरिटाइजेशन, प्री ऑफ गायनी राउंड, पोस्ट ऑफ गायनी राउंड, ये जो है आपके मोस्ट कॉमनली स्टेशंस पूछे जाते हैं।
देन डोमेन्स, आपके पास अब कौन से डोमेन्स असेस होते हैं? हमारे पास जो है वो 5 डोमेन्स होते हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब है कि आपकी हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री टेकिंग हम सब की बहुत अच्छी है, उसमें हमें डिफिकल्टी नहीं होती है। और हर डोमेन जो है वो पास, बॉर्डर लाइन या फेल होता है। उनके पास एग्जामिनर के पास सिर्फ यही शीट पे लिखा होता है, पास, बॉर्डर लाइन या फेल। पास का मतलब है 2 मार्क्स, बॉर्डर लाइन इज 1, फेल है 0। ठीक है। और इंफॉर्मेशन गैदरिंग आपकी हिस्ट्री में हो गई। अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज, आप जब मैनेजमेंट प्लान बना रहे होते हैं या जब आप हिस्ट्री ले रहे होते हैं, तो आप किस कौन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपकी अप्लाइड कॉलेज नॉलेज में शुरू हो जाता है। फिर कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड कोलीग, ये आपका कब से स्टार्ट होता है? ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब से आप स्टेशन के अंदर एंटर होते हैं और आप पेशेंट से हाय हेलो करना शुरू होते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड रिलेटिव्स आपकी वहां से शुरू हो जाती है मार्क होना। क्योंकि ये पूरा 10 मिनट्स का शो होता है जिसमें जो है ना, आप जो भी बात कर रहे हैं वो आपकी कम्युनिकेशन आती है पेशेंट के साथ बात करने की। फिर So, Dr. कम्युनिकेशन विद Aksha, कोलीग्स। जी। Dr. Aksha, I have seen stations, they have particularly mentioned that you will be assessed on information gathering. Yeah, they will say you will be assessed only on communication or patient safety, and they have not mentioned you are not like information gathering, applied knowledge. So we have to omit history taking and applied knowledge things because they specifically mentioned that this station based on your communication and safety. हाँ बिल्कुल, अगर किसी स्टेशन में, लेकिन देखें कोई भी स्टेशन जो है, अगर इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं लिखा हुआ आपके डोमेन में तो नो नीड फॉर हिस्ट्री। लेकिन कोई भी स्टेशन आपका कंप्लीट डोमेन में ऐसा नहीं होगा, कम्युनिकेशन विद पेशेंट नहीं हो, कोलीग्स नहीं हो, पेशेंट से, ये आपके हर तीनों डोमेन हर स्टेशन में होंगे। हो सकता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग मिसिंग हो, बाकी चारों डोमेन्स होंगे, वरना आप बात, क्योंकि मार्क्स ही आपको मेनली जो है वो कम्युनिकेशन पे उस स्टेशन में होगा ज्यादातर जो कि ले एग्जामिनर में है, क्योंकि वो आपकी हिस्ट्री नहीं सुनना चाह रहा था, वो आपकी सुनना चाह रहा होता कि आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं पेशेंट के साथ। Mm-hmm. So, Dr. जैसे Aksa, here ब्रेकिंग I बैड used to न्यूज। make mistakes. I personally made mistakes here. When I read the station, I forget during execution that I was supposed to focus on communication or safety, and I start to take history. So here I feel that I have to improve. Similarly, everyone will have their short areas. So हाँ, this was me. So you must have to read your domains on which domain you are being tested, and you have to register it seriously. क्योंकि आपने हिस्ट्री लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना हिस्ट्री पे लेके, जिसके मार्क्स ही नहीं है आपके स्टेशन में। तो क्यों नहीं वो टाइम जो है वो कम्युनिकेशन या किसी और डोमेन पे यूज करें जिसमें आपको मार्क्स तो मिलेंगे। हिस्ट्री ले Yes, तो लेंगे, exactly. लेकिन हिस्ट्री के मार्क्स ही नहीं है तो क्या फायदा उस चीज को टाइम देने का जिसके मार्क्स ही नहीं है। ठीक है। कम्युनिकेशन विद कोलीग सबसे इजी होता है। क्यों सबसे इजी होता है? क्योंकि आपको पता है कि आपने अपने कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करना है, आपने जो है अपने एनेस्थेटिस्ट को, हिमेटोलॉजिस्ट को, रेडियोलॉजिस्ट को, जो भी आपको स्पेशलिटी चाहिए अपने केस का, आपने सिर्फ वो नाम लेने होते हैं। तो वो आपकी कम्युनिकेशन विद कुलीग हो गई। इसलिए कम्युनिकेशन विद कुलीग में कहती हूँ सबसे इजी, और सब उसमें जो है आपके यूजली जो है वो टू पूरे जो है वो आपके पासिंग मार्क्स ही आते हैं। पेशेंट सेफ्टी, वो आपके अगेन स्टार्ट हो जाती है जब जैसे आप क्यूब में एंटर होते हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं अपना स्टेशन, क्योंकि आप पेशेंट का नाम कंफर्म करते हैं, ये अगेन पेशेंट सेफ्टी है। जैसे अभी बताया कि ड्रग एलर्जीज, अगेन ये जो है वो पेशेंट सेफ्टी आपकी होती है। सो जब भी अगर आपके स्टेशन में लिखा हुआ है कि आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब है कि आपने हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी एग्जामिनेशन आपने परफॉर्म नहीं करनी होती, आपके स्टेशन में लिखी हुई होती है, या आप बोलते हैं कि आई विल एग्जामिन द पेशेंट, तो आपका जो एग्जामिनर होता है वो आपको एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स दे देता है आपके सामने ही। फिर इन्वेस्टिगेशंस, तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आपकी 3 चीजें आपने कवर करनी होती, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, जो कि आपके केस से रिलेटेड होती हैं। फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग सबसे इजी है कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन कि ब्लीडिंग के साथ आया पेन। तो कैन यू टेल मी मोर अबाउट दैट? देखिए सर, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करके बताती हूँ कि अब आपने इंट्रोड्यूस कैसे करना होता है। जब हम वो आगे स्टेशन पे करते हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि आज आप इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। फिर हाँ, अगर कोई वॉलंटियर करता है तो दैट इज गुड, लेकिन मेन कि आपने छोटी छोटी स्टेप्स लेने के आज से आपने कैसे उसको मूव ऑन करना है। फिर आपके आ गई हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन, ऑब्स हिस्ट्री,
हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव, हाउ आर दे बॉर्न, गायनी हिस्ट्री, एलएमपी पूछी आपने, सर्वाइकल स्मीयर्स पूछा, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, कोई और मेडिकल, एनी मेडिकल कंडीशंस फॉर विच यू सी योर जीपी, बस मेडिकल हिस्ट्री में इससे ज्यादा कुछ पूछना ही नहीं है। सर्जरी, एनी सर्जरी इन टमी और डाउन बिलो, बस। फैमिली हिस्ट्री, एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ कंसर्न, अगर वो नहीं बताती या आपको लगता है आपका पेशेंट कैंसर का है, तो एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर इन द फैमिली। ठीक है, ड्रग हिस्ट्री, आर यू ऑन टेकिंग एनी मेडिकेशन, डू यू हैव एनी एलर्जीज, बस ये छोटे छोटे सेंटेंस, क्योंकि जितना छोटा सेंटेंस होगा उतना आपका टाइम सेव होगा और आप मैनेजमेंट को ज्यादा टाइम दे सकते हैं। पर्सनल हिस्ट्री, डू यू स्मोक, ड्रिंक एल्कोहल, यूज एनी रिक्रिएशनल ड्रग्स, देखो इधर स्मोकिंग एल्कोहल रिक्रिएशनल ड्रग्स इज नॉर्मल, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस सेंटेंस को बोलते हुए। जब आप इसको 100 टाइम्स बोलेंगे तो ये आपके लिए नॉर्मल लगेगा बोलने में, कि हमें लगता है कि हम इनसे पूछेंगे स्मोकिंग के बारे में, अल्कोहल के बारे में, तो ये ऑफेंड करेंगे, ये इनको बुरा, लेकिन यहाँ का नॉर्म ही है, यहाँ का कल्चर ऐसा है, तो दैट इज नॉर्मल फॉर देम, तो इसमें हमें जो है वो बोलने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। फिर सपोर्ट, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, हाउ इज द सपोर्ट, एनी मेंटल हिस्ट्री, हाउ हैव यू बीन फीलिंग इन द लास्ट 6 मंथ्स, ये आपकी हमारी जो है वो नाइस गाइडलाइन का एक क्वेश्चन है, तो ये हमें पूछना होता है अपना। फिर आ गया कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स एंड रिलेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन, क्योंकि जब से आपने बोलना शुरू किया वो आपका स्टार्ट हो गया। फिर आपने पेशेंट को इन्फॉर्म किया कि आप उसकी कंडीशन क्या है, जो भी कंडीशन है वो आपने लेमैन लैंग्वेज में उसको समझानी है। फिर उसको इंगेज किया, कैसे इंगेज का क्या मतलब है कि आर यू गेटिंग मी, डू यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग, कोई बात समझ नहीं आ रही तो मैं उसको रिपीट करूं, मतलब उससे ये पूछते रहना है बीच में, क्योंकि आपने अपने पेशेंट को कंफर्टेबल करना है। फिर निगोशिएट, अगर कोई चीज वो बोलती है कि नहीं मुझे तो 20 ईयर्स की लेडी जो है वो बोलती है, लड़की बोलती है कि मुझे हिस्टेरेक्टमी करानी है, तब आपने उसके साथ निगोशिएट कराना है कि हाँ हिस्टेरेक्टमी है तो बहुत अच्छा ऑप्शन, लेकिन दिस इज नॉट सुटेबल बिकॉज यू आर यंग एंड यू वांट टू हैव किड्स इन द फ्यूचर, तो इसको हम बोलते हैं कि आप निगोशिएट कर रहे हैं अपने जूनियर अपने जो है वो पेशेंट के साथ। और मेकिंग शेयर्ड केयर प्लान, शेयर्ड का क्या मतलब होता है कि जो आप और आपका पेशेंट मिलके जो है वो अग्री करें। ये कैसे होगा, ये सिर्फ होगा जब आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड रिलेटिव्स, कि आपने इंट्रोडक्शन किया, फिर आपने जो है एजेंडा, आई हैव गैदर्ड फ्रॉम योर केस नोट्स कि आपको ये प्रॉब्लम है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे, कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर ब्लीडिंग, फिर वो अपनी ब्लीडिंग के बारे में सब कुछ बताएगी, उसने चले आपने एलएमपी नहीं बताई है, उसने आपको क्लॉट्स नहीं बताया, डू यू पास क्लॉट्स, डू यू हैव एनी डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना, मतलब इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपने, और जो वो बात बता रही है उसको एक्टिवली सुनना है। फिर जब कभी कोई बात कर रहा होता है तो हम उसको जो है अपनी इस तरीके से कर रहे होते हैं, हम अपना जो है वो हेड को जो है वो नॉट कर रहे होते हैं, सर हिला रहे होते हैं, तो दीज आर लाइक नॉन कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल जो है वो एक्सप्रेशंस होते हैं, तो ये भी आपने जो है वो शो करने होते हैं। तो आपको उससे पता चलता है कि आपका रोल प्लेयर को, कि आप वो आप अटेंटिवली उसको सुन रहे हैं। फिर मेडिकल एक्सक्यूज मी डॉक्टर जॉर्गन अक्सा, आपने अवॉइड कर जी। हमारे पास अंदर जब हम हिस्ट्री और ये सारा कुछ कर रहे होते हैं तो तब पेंसिल पेपर होता है कि हम उसको थोड़ा सा समराइज कर लें ब्रीफ या कोई इस तरह से, या बस सब आपने अटेंटिवली लिसन करना है? हम्म। हाँ देखो, आपने अटेंटिवली लिसन करना है, समराइज कर तो दें, आप समराइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, समराइज करने से आपका जो है आपको क्या अचीव हो रहा है, आपका कि वन उसका मिनट जो है मैनेजमेंट आपको बस। प्लान या कोई इस तरह से एंड में आपको थोड़ा उसको माइंड में रह हाँ, जाए अच्छा चीजें। देखो, वो आपने करने के लिए क्या, वो जब आपके बाहर 2 मिनट्स होते हैं ना, वो आपने उसमें सब कुछ हाँ हाँ, लिखा हुआ होता है, अच्छा वो उस वो टाइम आपने ही वहीं प्लान पे कर प्लान, लेना क्योंकि है। अगर आपने अंदर में बोलना शुरू किया ना तो ठीक ठीक आपका वन ठीक, मिनट चले जाएगा उसको बोलने वो में, वेस्ट होगा, वो टाइम भी वेस्ट सेव होगा। करना है उससे। और समराइज के आपको मार्क्स नहीं मिल रहे एक्चुअली, वो ओके बोलें ओके, जिसके मार्क्स मिल रहे, नहीं मिल रहे उसको छोड़ दें। ठीक। इधर सारी और बात एक है सिर्फ सेकंड मार्क्स क्वेश्चन की। मैंने ये पूछना था कि एक ये जो पाकिस्तान में जब सपोज हम अपीयर हो रहे हैं तो कैंडिडेट जो रोल प्लेयर है उसके अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन और ये स्मोकिंग और ये अल्कोहल, तो ये सेम हम उसी तरह से ये नहीं उसको हाँ हाँ, देखो पूछेंगे या? एग्जाम, देखो देखो है वो होंगे बेशक वो पाकिस्तान, लेकिन क्या एग्जाम जो है वो आपका इंटरनेशनल एग्जाम है, तो इनके लिए तो ये नॉर्मल बात है।
ठीक हो तो गया। इसलिए आपने जो हाँ हाँ, इंटरनेशनल तो है, तो फिर इसलिए इसलिए आपने क्वेश्चन जो है ना सेम ये रहेंगे। पूछना जरूरी है। और ये आपकी पेशेंट सेफ्टी है, क्योंकि ओके अगर एक ओके। पेशेंट बोलते हैं मैं सही। अल्कोहल पी रहा हूँ, तो आपने अपनी मैनेजमेंट में हम्म। उसको बताना है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड क्विट हम्म। अल्कोहल, या यू शुड डिक्रीज अल्कोहल। ठीक है। ये आपकी ओके, थैंक पेशेंट यू। सेफ्टी में भी आपकी कवर तो हो डॉक्टर जाती यहाँ है। पे साइन पोस्ट कहाँ करना है, किन बातों पे करना है? साइन पोस्ट देखिए, साइन पोस्ट आपको है ना, बहुत से लोग कहते हैं कि आप जब ये पूछ रहे होते हैं ये स्मोकिंग अल्कोहल एंड ये इसमें रिक्रिएशन ड्रग्स में, कहते हैं कि ये आप बोलें। लेकिन जब मैंने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे की थी, यहाँ पे ये लोग नहीं करते, ये लोग डायरेक्ट पूछते हैं डू यू स्मोक ड्रिंक अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे करते ही हैं वो लोग सब, ये नहीं और करते डॉक्टर साइन अक्सर पोस्ट। इस पे हम इनको एडवाइस करते हैं कि ये इसको क्विट, यानी क्योंकि इनका तो ये वो उसमें है चीज कल्चर में और ओवरऑल, तो इस पे आप उसको एडवाइस करते हैं हाँ कि देखो, इसको और आप क्विट करें एडवाइस या कैसे ड्रग यूज करते हैं। करें। और हाँ देखो, आप एडवाइस कैसे करते हैं कि इट इज नॉट हाँ सेफ हाँ, फॉर यू ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड फॉर योर बेबी। ज्यादातर अल्कोहल वाली जो है ठीक ना, हो वो गया। आती प्रेगनेंसी वाली में आती है आपकी अल्कोहल। सही सही। कि इट इज तो नॉट उसके एंड रेफरेंस से एंड करेंगे उसको, एविडेंस शोज ओवरऑल देयर इज नो वैसे सेफ नहीं। लिमिट। एविडेंस हमारा हम्म। बताता भी है कि कोई सेफ लिमिट नहीं है। ये हमने कुछ स्टेटमेंट उसको यानी सेंटेंसेस बोलने हैं हाँ, ये उसको। आपने बोल देनी है। जैसे ही उसने हम्म। बोला कि आई ड्रिंक अल्कोहल, तो उसी वक्त इस बात को बोल दीजिए। It is very important that alcohol, there is no safe limit of alcohol during pregnancy because it can harm you and your baby. Bas, ठीक हो I will Dr. connect you with Aksha, the support group. I have seen your templates which you have provided me and they were so good. मतलब I think so कि हाँ after you are reading these templates there will be anything to miss out. How to tackle गया। smoking, alcohol, even sexually transmitted infections. So हम्म। Maria, nothing to worry. Uh, ठीक, यानी once ये you will एड्रेस समझ में आया, हाँ। read Dr. Aksa's templates, you will love this M3 exam. इंशाल्लाह, ओके। हाँ, नहीं देखिए, बस इंशाल्लाह। वही है कि हम सब का एम है कि आप सब क्लियर करें, कि जो थैंक यू। डिफिकल्टीज मुझे हुई वो आप सबको ना हो। इंशाल्लाह। ओके, थैंक इंशाल्लाह, डेफिनेटली द एम इज ऑलवेज लाइक दैट। फिर कम्युनिकेशन विद कोलिग्स, आपकी एमडीटी, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, जो भी आपके केस से अकॉर्डिंगली आपने उसको इन्वॉल्व करना होगा। फिर पेशेंट सेफ्टी, आपका इंट्रोडक्शन, एलर्जीज की हिस्ट्री। एग्जामिनेशन जब भी करना है शेपरॉन के साथ, आई विल एग्जामिन यू इन द प्रेजेंस ऑफ शेपरॉन। और कॉल फॉर हेल्प, आपका लेवल जो है वो जब आप पार्ट 3 दे रहे होते हैं तो आप ST5 होते हैं। वो आपसे ये एम नहीं करते कि आप जो है ना पार्ट आप हिस्टेक्टमी जाके कर लेंगे। हाँ, आप हिस्टेक्टमी के लिए कंसेंट ले सकते हैं, काउंसल कर सकते हैं, लेकिन हिस्टेक्टमी आपका लेवल नहीं है करने का, क्योंकि आप ST5 है। डॉक्टर अक्सर ST5 का शेफरॉन पे लेवल। एक चीज पूछनी थी, अगर अगर रोल प्लेयर इंसिस्ट करे कि शी वांट टू बी एग्जामिन्ड विदाउट शेफरॉन, सो हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन? हाँ, दैट इज वेरी, अब उसमें आपने ये बोलना होता है कि लीगली आई एम नॉट अलाउड टू एग्जामिन यू विदाउट द शेपरॉन, बिकॉज इट विल अफेक्ट माई रजिस्ट्रेशन। आपने उसको So, क्लियरली so, बोलना so you होता will है। refuse. So you will refuse. हाँ, आपने रिफ्यूज नहीं करना। आई एम हैप्पी टू एग्जामिन यू, बट लीगली इट कैन हैव, इट विल अफेक्ट माई रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द कॉलेज। So then, even then, आपने we उसको will मना भी examine. नहीं करना कि आई एम हैप्पी टू डू इट, मैं आपके करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा कॉलेज जो है वो ये जो पॉलिसी है वो मुझे इजाजत नहीं देती। ओके ओके, मतलब आपने पोलाइटली उसको अवॉइड करना है, हाँ, मतलब मतलब मना तो करना है, लेकिन अवॉइड करना पोलाइटली है, मना करना हाँ है। अच्छा। और हमने एग्जामिन नहीं करना होता, हमने जस्ट ये वैसे ही एक वो शो करना है कि मुझे आई नीड यू एग्जामिन्ड, और इस तरह से हाँ, नहीं नहीं फॉर देखो, एग्जामिनर ना ये लोग फाइनल बोलते भी नहीं है मैनेजमेंट। आपको एग्जामिन करने को, ये नहीं बोलते। आपके पास एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स दी भी होती है। या जब आप हम्म। स्ट्रक्चर डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, तो आई विल एग्जामिन द पेशेंट, जब आप ये वर्ड बोलते हैं ना, तो एग्जामिनर आपके सामने एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स रख देता है कि ये ओके, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। फिर जब भी आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, तो आपने पेशेंट को इन्वॉल्व करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट बोलती है कि STI मतलब HIV का मेरे हस्बैंड को नहीं पता चले, तो आपने बोलना है कि हाँ हम नहीं बताएंगे, लेकिन अगर लगता है कि हमें शक है कि भाई तुम्हारे हस्बैंड को डिजीज फैलेगी, क्योंकि HIV ऐसा है कि इसके हस्बैंड को कंटेजियस, इसके हस्बैंड को ट्रांसफर हो सकता है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम तुम्हारा नाम नहीं लें, हम डायरेक्टली बात करेंगे विदाउट इन्वॉल्विंग योर नेम। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी हो गई।
कि पेशेंट बोले कि मेरी मदर को नहीं बताओ कि मैं जो है ना वो सेक्सुअली एक्टिव हूँ, ठीक है तो भी, डॉक्टर हाँ आपका उसमें इसमें आपने नहीं एनोनिमस बताना। लेटर भेजना होता है ना? एनोनिमस लेटर भेजना होता है ना? हाँ बिल्कुल, एनॉनिमस लेटर हम नहीं भेजते, वो जीपी भेज रहा होता है, हम सिर्फ जीपी को लिख के भेज देते हैं। जी जैसे जी यहाँ पे बिल्कुल। अगर अबॉर्शन करवा रहे होते तो बहुत से पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें अबॉर्शन जो है ना हमारे डिस्चार्ज पेपर पे नहीं लिख कर दो, तो हम लिख के देते हैं वॉज ट्रीटेड फॉर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बस हम ये मेंशन करते हैं क्योंकि पेशेंट मना कर रहा है कि मेरे इस अबॉर्शन के बारे में जो किसी को पता नहीं चले। तो आपने उसकी विश को भी रिस्पेक्ट किया और कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन हो गई। देखिए इसके ओके। नोट्स में आपको सब कुछ पता होगा, कोई इसके नोट देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि उसमें सब कुछ डॉक्यूमेंट होगा कि इस पेशेंट ने मना किया था नहीं बताना, तो दैट इज वाई जो है वो मेंशन नहीं किया गया। और यही ये छोटी छोटी बातें आपसे पूछ रहे होते हैं। फिर हम्म। असेसिंग मेंटल कैपेसिटी, कुछ होते हैं कि आपके पास स्टेशन आते हैं कि उसमें जो है ना पेशेंट बोलते हैं कि पेशेंट को अल्जाइमर डिजीज है, वो मेंटल फिट नहीं है कि आपको कंसेंट दे सके। तो फिर उसमें आपने जो है ना पूरा पाथवे होता है वो हम स्टेशन में करेंगे कि वो एक स्टेशन अच्छा है, एक स्टेशन है जो आपका पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ स्पेशली आवे कि पेशेंट जो है पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग है और उसको जो है वो अल्जाइमर डिजीज है, वो शॉर्ट टर्म उसकी मेमोरी है फिर वो भूल जाती है, तो अब आपने उसका कंसेंट कैसे लेना है। तो अगेन उसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि मैं पहले पेशेंट के पास जाऊंगी, उससे बात करूंगी कि क्या जब मैं उससे बात करी वो रिटेन कर सक रही है इन्फॉर्मेशन को और रिप्लाई कर सकती है, तो मैं उससे कंसेंट ले लूंगी। नहीं कर सकते तो मैं उसके फैमिली मेंबर को साथ बिठाऊंगी, अगर उसने जो है किसी को जो है अपना गार्डियन बनाया हुआ है। नहीं तो फिर मैं अपने हॉस्पिटल की जो है वो लॉयर है या एडवोकेट को इन्वॉल्व करूंगी। तो ये आपका जो है जैसे हम उस सेशंस को प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसको और डिटेल में उन चीजों को डिस्कस करते जाएंगे। फिर आपने कंसेंट, सेफ गार्डिंग, रिस्क मैनेजमेंट, आप मेडिकेशन कोई दे रहे हैं, मतलब आप लेबिटलॉल दे रहे हैं तो उसमें आपने मेक श्योर करना है कि अस्थमा नहीं है पेशेंट को। आप कॉन्ट्रासेप्शन दे रहे हैं तो मेक श्योर करना है कि पेशेंट जो है उसके लिए फिट है फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, ये छोटी छोटी जो है वो आपको और एग्जाम में आपको आता है कि प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। जब मैंने एक मॉक दिया था क्योंकि मैं यूके में आ गई थी तो मैंने यूके में ही एक मॉक दिया था, तो मुझे उसमें मॉक में उन्होंने कहा था कि आप प्रिस्क्रिप्शन लिखें, और प्रिस्क्रिप्शन मुझे लगता था प्रिस्क्रिप्शन में क्या मिस्टेक होगी फिर पता चला कि प्रिस्क्रिप्शन भी जो है ना इनकी डिफरेंट होती है। तो वो भी हम जब डिस्कस अपने करेंगे तो हम बताएंगे कि प्रिस्क्रिप्शन आपने बेसिकली कैसे लिखनी होती है। फिर अप्लाई क्लिनिकल नॉलेज के आपने गाइडलाइंस को रिवाइज करना है, पूरी पूरी गाइडलाइंस नहीं पढ़नी, सब इसके जो ग्रीन जो ब्लैक बोल्ड होती है समरी सिर्फ आपने वो पढ़नी है, क्योंकि आपका मैनेजमेंट प्लान आप उसके अकॉर्डिंगली बताएंगे। फिर जो बोल रहे हैं उसको जस्टिफिकेशन के साथ बोलना है कि अगर हिस्टेक्टमी करनी है तो हिस्टेक्टमी का बेनिफिट ये होगा और इसका जो है अ, इसका डिसएडवांटेज ये होगा। एंड जो भी आप बोल रहे हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स के साथ आपने उसको बात को बताना है अपने। फिर हाउ टू प्रिपेयर, रोज आपने कोशिश करनी है कि आप 2 पिल डेली, अब तो ऑडियोज की फॉर्म में भी पिल आ चुके हैं, तो आप गाड़ी में जा रहे हैं सुबह अपने काम के ऊपर तो सुनते जाइए, तक 1-2 वर्ड्स भी आपके कान में चले गए तो मोर देन इनफ है एक डे के लिए। फिर वही स्टेशन को आप प्रैक्टिस करें, कोशिश करें बस 2 स्टडी पार्टनर्स हो तो उससे क्या हो कि अगर एक बिजी है तो आप दूसरे के साथ कर लें, और अगर कोई एक ना एक तो अवेलेबल ही होगा दोनों में से, तो इस वजह से आपके पास 2 स्टडी पार्टनर्स हो तो वो बहुत अच्छा होता है। नहीं तो एक के साथ तो आपने डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है, वैसे ही प्रैक्टिस करना है कि इसमें आप 2 मिनट्स रीडिंग टाइम और 10 मिनट्स जो है आपका वो परफॉर्मेंस टाइम होगा। उसमें फिर आप जब एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो है वो 2 या 2.5 मिनट्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, बाकी रिमेनिंग टाइम आपकी मैनेजमेंट प्लान पे जा रहा है, तो ये भी जब आप एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपने फीडबैक में बताना है कि आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है वो 3 मिनट से ऊपर चली गई नहीं, इतने तो उसके अच्छा मार्क्स ही नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं मेरे पास ना जी। कुछ कुछ टिप्स हैं यहाँ एज ए स्टूडेंट जी जी। कैंडिडेट, कि हाउ टू सेव टाइम। एक तो बोलने से पहले लिखो, मतलब जिस स्टेशन को आप कर रहे हैं, जैसे आपने सोचा है कि मैंने स्ट्रक्चर डिस्कशन प्रिपेयर करनी है इस मॉड्यूल से, तो उसके 3-4 स्टेशंस आपके पास टेम्पलेट्स में है ना, पहले उनको एक दफ़ा अपने हाथ से क्रिएट करो, छोटे छोटे सेंटेंसेस में, अगर आपने मॉडिफाई करना है, वरना तो आपको मिल गए।
लेकिन जो मुझे मिले थे वो बड़ी लंबी गप्पें थी, तो मैंने उनको खुद से फिर मॉडिफाई किया क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही थी। और फिर मैंने उनको ना रिकॉर्ड किया अपने सेल पे। और फिर जब मुझे पता चलता था कि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो फिर मैं मजीद नैरो डाउन उनको करती गई ना। तो इस तरह करते 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 इट आई टुक 10 अटेम्प्ट्स, तब जाके एक स्टेशन विद इन 9 मिनट आई कैन एग्जीक्यूट। और फिर एम ये था कि 10 मिनट में ओह। हो ना। तो ये फिर मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा। मतलब मेरे लिए तो 10 10 टाइम्स करने पे हुआ। आई एम वेरी मीडियोकर स्टूडेंट। लेकिन अगर आप करते हो तो यू कैन डू इट इन 3 to 4 अटेम्प्ट्स। लेकिन टाइम टाइम इस तरह से आप अपना जो है वो कर सकते हो मैनेज, वरना फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि टाइम जो है, टाइम अगर आपको नहीं हुआ तो आपके डोमेन्स आपके मिस हो जाते हैं। एग्जैक्टली और फिर आपको मे भी कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़े काफी सारी डोमेन से, हर डोमेन्स को इक्वली एड्रेस करने के लिए। तो कोई मसला नहीं है, लाइक आपने पास ही होना है ना। तो इफ़ यू आर इन टेकिंग 2 मार्क्स तो इट्स एनफ, लेकिन हर डोमेन को एड्रेस करें। ये नहीं कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग को ज़्यादा टाइम दे दिया और कम्युनिकेशन में कम चीज़ें जा रही हैं। तो मतलब कि आप सेक्रीफाइस करना पड़े तो ठीक है, हर चीज़ आप पासिंग पे ले आओ ना, एक्सीलेंट मत करो, बट डू एवरी स्टेट एवरी मॉड्यूल एवरी एग्जैक्टली, कि सिर्फ जो है ये प्रैक्टिस के साथ ही हो सकता है, और कोई इसका जो है वो शॉर्टकट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जितना प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका इम्प्रूव होता जाएगा। आपको खुद लगेगा कि जब आपने एक स्टेशन को फर्स्ट डे पे किया और उसको 5 डेज के बाद आप उसको रिपीट कर रहे हैं, तो आपको खुद डिफरेंस लगेगा कि मैंने उसको पहले दफा कैसे किया था और आज कैसे कर रही हूँ। तो जब आप एक स्टेशन करते हैं तो आपको खुद को भी आइडिया होता है कि मैंने इसमें ये बात तो बोलनी नहीं चाहिए थी, ये बात मैंने उसमें बोल दी। तो आपको खुद भी चीजें जो है वो रियलाइज होती हैं जब आप बोलते हैं तो। थैंक यू डॉक्टर हिरा कि आपने जो है ना बहुत अच्छी टिप्स दी हैं। थैंक यू, यू टू, आपने भी अच्छा एड्रेस किया। थैंक यू सो मच अपने, डॉक्टर अक्सा, बहुत अच्छा नहीं डिटेल में नहीं नो, आपने एक एक चीज नहीं को बस डिफाइन किया इंशाल्लाह है। आप सब पास हो जाए, दैट विल बी द प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि आपकी जो है ना सारी एफर्ट्स जो है वो काम आ गई। अब एग्जाम के टाइम पे आपको लास्ट वन मंथ में सिर्फ मैं ये बोलती हूँ कि आपने लास्ट मंथ बिफोर द एग्जाम सिर्फ 7 स्टेशंस बैक टू बैक, सुबह बस उठ के जो है ना वो, या जहाँ जॉब पे जा रहे हैं तो वहां से आके 7 स्टेशंस आपने किए, 7 स्टेशंस आपके पार्टनर ने किया, तो 14 स्टेशंस हो गए। इस तरह से करना है। फिर एग्जाम से 5 डेज पहले या 1 वीक पहले 14 स्टेशन या मॉक ले लें। तो क्या होगा कि आपको वो एग्जाम का स्ट्रेस मिलेगा, क्योंकि आप बाय द एंड क्या होता है आप अपने स्टडी पार्टनर के साथ यूज टू हो जाते हैं। उसके साथ जब आप यूज टू हो जाते हैं तो फिर आपको जो है वो लगता है कि अब मुझे उसकी जरूरत, मतलब उसके साथ तो मतलब काफी मैं फ्रैंक हो गई हूँ, उसके साथ यूज टू हो गई हूँ। तो इस वजह से जब आप मॉक्स लेते हैं तो आपको पता चलता है कि अब दूसरा कोई आपको सुनता है तो आपको समझ आती है कि कहाँ पे चीजें मिसिंग थी। अच्छा, वैसे ये बात शायद हमारे अपने बेनिफिट में नहीं है, लेकिन नॉट बीइंग दैट कि हमारा फायदा हो, फायदा आपका होना चाहिए। तो ना, ये जो एंड पे तुम लोगों के सबके काम आने वाले हैं ना, वो वैरायटी ऑफ मॉक हैं। किसी एक मेंटर के साथ स्टिक नहीं होना, किसी एक मेंटर के साथ मॉक में। ठीक है, हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है, और आपको तो वैरायटी ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए ना, क्योंकि वहां भी तो 14 स्टेशन होंगे और 14 डिफरेंट एग्जामिनर होंगे। तो अगर आप हम्म। एक ही मेंटोर को कॉपी करते रह जाओगे और वो खुद एग्जामिनर भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ आप थोड़े से आपकी आपके साथ ज्यादती हो रही है। तो इतनी मोहब्बत में नहीं आना किसी के साथ। दोस्त ने ज्वाइन कर लिया तो आप भी ज्वाइन कर लो, पार्ट 2 में उन्होंने पढ़ा दिया तो आप भी ज्वाइन कर लो, सस्ता है तो आप भी ज्वाइन कर लो, या बहुत महंगा है तो आप भी ज्वाइन कर लो। आपने वैरायटी ऑफ मॉक पे जाना है, ठीक है। एग्जैक्टली और नहीं तो अपने ही मतलब चलो, क्योंकि काफी मॉक्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत मतलब बजट से आपके आउट हो जाते हैं, नहीं पॉसिबल होते तो अपने किसी और कोलीग के साथ प्रैक्टिस करो। मतलब एक दो हाँ तो पता हाँ चले कि हाँ, उसका बिल्कुल क्या फीडबैक बिल्कुल। है। वैरायटी लेनी है, इससे फर्क नहीं हाँ पड़ता बिल्कुल, कि एम ये कि हाँ। आपने सिर्फ वैरायटी करनी है। ये एग्जैक्टली कुछ मॉक्स तो एग्जैक्टली। आपके रीजनेबल है और कुछ बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं जो नहीं हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, हम सब समझते हैं। लेकिन बस जब वैरायटी होगी तो आपका एम, आपका जो है वो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे बात कर रहे हैं, जब नए इंसान से बात कर रहे हैं पेशेंट के साथ तो आपको कैसा टॉकिंग स्टाइल है। So Aksa, they will have variety of examiners. They can access.
जैसे हाँ लाइक you बिल्कुल। yourself are examiner. One or two students of mine who are ahead of me and working in NHS as consultant, they approached me and they can also conduct mock. So we हाँ like we can provide them reasonable exposure, reasonable हाँ amount में हम इनको exposure दे सकते हैं variety of mocks का, तो ये अच्छा नहीं हो जाएगा? एग्जैक्टली, दैट इज गुड या, क्योंकि यही आपको चाहिए, यही आपका एम है कि अब आपकी नॉलेज, आपने सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया, एट द एंड मोमेंट जो आपकी छोटी छोटी सी कोई बारीक पॉइंट्स आपके रह गए, सिर्फ वो आपकी पॉलिश करने के लिए, और आपको वो एग्जाम का स्ट्रेस देने के लिए कि वो 14 स्टेशन में आपके ऊपर क्या स्ट्रेस जाता है और आप कैसे उसको रिएक्ट करते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ सब कुछ पॉसिबल है, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, फिर स्टडी मटेरियल आपके पास बुक्स हैं, हमारे पास जो है वो ये सारी बुक्स हैं, आपने बुक्स सारी नहीं करनी होती, स्पेशली मैं आपको ये कहती हूँ कि जो टोनी है वो काफी पुरानी है, तो अगर आप उसको भी छोड़ देते हैं तो दैट इज इनफ। इवन ऑक्सफोर्ड जो है वो आपकी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन वो थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, स्पेशली फॉर मे एग्जामिनर के लिए। मैं अभी नहीं कहूंगी कि मे के लिए अभी टाइम कम है, तो तो आप जस्ट फोकस। मे एग्जामिनीज के लिए कोई दो बुक कर सकती हैं शॉर्ट लिस्ट? जी बिल्कुल, एक लीजा जॉयल्स आपने करनी है और एक आपने जो है वो ये जॉनसन गेट थ्रू आपने करनी है। ओके और ओके। इसके जो सिनेरियोज है वो मोस्टली जो है आप, और आपके जो है वो क्वेश्चन जो आपके जो है वो हम आपको जो देंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस जो आपको पता एग्जाम्स में आ चुके हैं, दैट, और इनमें भी वही क्वेश्चंस है मोस्ट ऑफ द टाइम, सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ कि आपने उसको करना कैसे है। अगर आपके पास टाइम होता तो डेफिनेटली आपको मैं यही कहती कि आप 4 बुक्स करें, लेकिन विथ लिमिटेड टाइम हमें टाइम के साथ देख के चलना है कि अब हमारे लिए क्या फीजेबल है। ठीक है, ये आपके पास पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स हैं, ये आपके जो है आरसीजी की वेबसाइट पे सारे लगे हुए हैं, और जो नहीं होंगे वो आप हमें बोलिएगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। फिर डॉक्टर अक्सा, ये कोशिश। रिकॉर्डिंग में कहाँ पर अवेलेबल है ऑडियो, अगर लेना हो, PILs जो हैं? हाँ तो ये जो है वो मैं आपकी, आप पिल्स की रिकॉर्डिंग कह रही हैं? हाँ जी, यानी वो ऑडियो में ना, क्योंकि वो मैंने वो तो देखा है उसमें RCG वेबसाइट पर, वैसे तो है सारे अवेलेबल, लेकिन रिकॉर्डिंग में ऑडियो अगर मिल जाए तो वो थोड़ा हाँ, इजी रहता है वो क्योंकि। आरसीजी की वेबसाइट पे ही है, मैं उसका जो है अच्छा, वो उसी पे कोशिश ही करती है। हूँ आप सबको। ठीक हो गया। हाँ, तो उसका लिंक शेयर करूँ तो आप लोग को इजी हो जाए। चलें, ठीक है, थैंक यू। वो ज्यादा इजी हो जाएगा ऑडियो में। हाँ, क्योंकि वो ऑडियो, और जब आप जा रहे हो कहीं भी, आपको फ्री टाइम मिले, हम्म। खाना बना रहे कुछ भी कर रहे हैं, ठीक बस हो गया, उसको सुन बिल्कुल। लिया, ऑन कर दिया और अच्छा उसको अच्छा, सुनते रहे। ऐसे ही। मारिया, मारिया तुम्हें एक टिप दूं मैं बहुत सारी हाँ हाँ। टिप्स है वैसे। तुम ना AI के साथ प्रैक्टिस कर लो, वो तुम्हारी इंग्लिश भी ठीक करा देगा, सुनता भी रहेगा बैठ के, और बहुत सही रहेगा। अब तो इतने ज्यादा AI टूल्स आ गए हैं कि आप उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, दे AI कैन टूल्स, बी। हाँ हाँ। एग्जैक्टली, ऐसे ही है। नहीं, वाकई ये भी हो सकता है। इसमें प्रैक्टिस ही है हाँ बेसिकली, और वही मल्टीपल डिफरेंट लोगों के साथ। हाँ बिल्कुल, घर में कोई नहीं मिलता, अपने बच्चे को ही सुनाना शुरू कर दे, वो बेचारा एक दो दफा जब तक कि आपको पता से आप उसके आपको एक स्ट्रेस में आ जाएंगे कि मैं किसी को सुना रही हूँ। हम्म। एम आपका सिर्फ ये कि आपको बस खुद से बोलना आ जाए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको एक स्टडी पार्टनर ढूंढना है। ऐसा नहीं कि आप 10 लोग मिलके कर रहे हैं, नहीं, 2 से 3 आपको चाहिए। ठीक है, और मॉड्यूल वाइज सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है, मॉड्यूल वाइज एक आपकी रीडिंग जो है वो सारे मॉड्यूल्स की हो जाए। फिर आपको लगता है कि हाँ मैं, मुझे मॉड्यूल्स समझ में आ गए हैं, मॉड्यूल्स कैसे हैं, तो फिर आप मिक्स करके करें, कॉम्बिनेशन में करें, या आपको लगता है कि नहीं मुझे एक और रीड देनी है मॉड्यूल्स की, तब एक और दफा रीड दीजिए, फिर आप कॉम्बिनेशन में स्टेशन लीजिए कि कभी अर्ली प्रेगनेंसी कर लें, maternal मेडिसिन मिला उसके साथ मिक्स कर लिया, यूरोगाइनी के साथ जो है maternal मेडिसिन डॉक्टर या का लेबर। जो आपका जी। जो आपका मॉक है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी कि आपने क्या सोचा है? आप पूरा 14 स्टेशंस का जैसे एग्जाम का होता है पैटर्न एक ही दफा में लेंगी, या आपके लिए ये पॉसिबल होगा कि जैसे आप एक मॉक डोमेन वाइज रख लें, कि लाइक BBN का मॉक रख लें, या फिर आप एक मॉक से सारा SD का रख लें?
तो ये भी हाँ तो एक बिल्कुल, आइडिया ऐसा हुआ। भी पॉसिबल है जी। बिल्कुल दोनों ऑप्शंस होंगे कि आपने, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, मैं इस क्वेश्चन को ही करना चाह रही हूँ, इस टॉपिक को मैं कवर करना चाह रही हूँ, तो इस तरीके से भी पॉसिबल है। अदरवाइज 14 का सर्किट भी होगा, जैसा आपको कन्वीनियंट चाहिए ना, क्योंकि एम यही है कि आपको परफेक्ट होके एग्जाम में भेजना है। तो डॉक्टर अक्सा, इज दैट पॉसिबल? जैसे मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम स्ट्रक्चर डिस्कशन, वो थोड़ा सा मेरे लिए इजी है, तो मेरे सारे मॉड्यूल्स तो लाइक मुझे आते ही हैं, तो मैं एक दो प्रैक्टिस कर ली और फिर बाकी 14 आपको एज ए स्टूडेंट दे दिए, तो मुझे लगता है कि इस तरह मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बेहतर होगा कि मैंने सारे एसडी के जो थे हर मॉड्यूल से स्टेशंस आप एक एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट किए हैं। तो हाँ और बिल्कुल, फिर एग्जैक्टली दैट इज पॉसिबल, ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हम्म। आपने प्रैक्टिस किया, आपको पता है कि आपकी लैकिंग कहाँ है। और जब आपको मुझे ओके। बताएंगे हाँ, तो मैं अपना मॉडिफाई बिल्कुल हो सकता है। मॉडिफिकेशन आपके अकॉर्डिंगली होगी, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, कि आपको कहाँ पे लगता है कि मेरी वीकनेस है, कहाँ पे मेरा स्ट्रेंथ है। क्योंकि ठीक कुछ है। स्टेशन ऐसे होते हैं जो आप लगता है ये तो परफेक्ट है, इसमें मुझे कोई जरूरत हम्म। नहीं है करने की, तो फिर फिर जैसे उसको हम लेबर स्किप बोर्ड है, कर देंगे। हाँ लेबर बोर्ड में आई फील माई सेल्फ लेस कॉन्फिडेंट, सो वट आई विल डू, आई विल प्रिपेयर लेबर मॉड्यूल माई सेल्फ एंड देन आई विल गिव यू मॉक एंड ओके। तो फिर वो लेबर मॉड्यूल का ही मॉक होना, ताकि मेरी सारी ओके, ओनली फोकस लेबर वार्ड, प्रेपरेशन हाँ बिल्कुल, नो लेबर पे। प्रॉब्लम। ओके ओके। नो, ये तो क्योंकि बहुत मुझे अच्छा हो याद है गया। मेरा फर्स्ट स्टेशन जो है वो लेबर वार्ड था, और मैं हमेशा दुआ करती थी कि मेरा ये स्टेशन कभी भी फर्स्ट ना हो। हाँ, आई ऑल्सो हेटेड दिस। लेकिन ये मेरा फर्स्ट स्टेशन था, लेकिन काफी अच्छा हुआ था, मुझे अभी भी याद है, काफी अच्छा हुआ था, मैं उसमें सेटिस्फाइड होके निकली थी। लेकिन मैं हमेशा ये दुआ करती थी कि नहीं हो। तो उसके लिए भी आपने प्रिपेयर होके जाना होता है कि कुछ भी आप कर रहे डॉक्टर हो। अक्सर, क्या ये पॉसिबल है कि आपके साथ एक पॉडकास्ट हो जाए जिसमें आप अपने एग्जाम के एक्सपीरियंस को बताएं? वो बड़ा रियल सा हो जाएगा। वैसे मुझे तो लगता है ये भी डेफिनेटली हम पॉडकास्ट ही बन गई है, कोई और तो बोल ही नहीं रहा। आप और मैं और बस मारिया बोल रहे हैं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह हम डेफिनेटली कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। चलें, ये भी अच्छा हो जाएगा। बाकी साइमा, एसके, रुखसार, अम्मारा, इफ यू वांट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन ऐड हाँ योर बिल्कुल, थॉट्स। आप प्रैक्टिस करें, आप लोग का टाइम है कि अब आपने प्रैक्टिस करनी है, कौन करना चाहेगा? प्रैक्टिस तो खैर अभी इस हालात में चलिए, नहीं कोई हूँ। प्रैक्टिस नहीं करे, सिर्फ अपना ये बताएं, चलिए सिर्फ सब इंट्रोड्यूस करके बताएं कि कैसे हाँ इंट्रोड्यूस हाँ करेंगे। आपके हाँ। पास ये स्टेशन है, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। नहीं सिर्फ नहीं हम डॉक्टर अक्सर, इंट्रोडक्शन से। मैं ये कह रही थी कि जो हमारे आज लाइक जूम पे जिन्होंने मैं ज्वाइन किया, वो अपना इंट्रोडक्शन ही देते हैं एटलीस्ट, कि वो क्या कर रहे हैं, कब उनका एग्जाम है, उनके क्या लाइक हाँ, कंसर्न्स थॉट्स हैं। है, उन्होंने स्टडी करना शुरू किया तो उनको कहाँ पे वीकनेस लग रही है, एग्जैक्टली, ये गुड सो आइडिया। हमारा, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? रुखसार, साइमा, एसके, इफ यू वांट टू अनम्यूट। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इनोनिमस रहना चाहते हो, हम आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखेंगे। मुझे लगता है ये सारे कॉन्फिडेंशियल। ओके ओके, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू करें, अपना सेशन एंड कर लें। आई आई नो आई एम गेट टेकिंग टाइम। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बस हमारा सबका एम ये है कि आप सिर्फ प्रैक्टिस करें। और आपको लगता है कि कोई सेशन आपने किया और आप सुन करना चाह रहे हैं प्रैक्टिस, तो एनी टाइम आप बताइए कि आपका कौन सा कन्वीनियंट टाइम है, क्योंकि आपने अपने टाइम पे मॉडिफाई करना है, आपने अपनी फैमिली की नीड्स देखनी है। जब आपको लगता है कि ये आपका फीजेबल टाइम है, तो आप कर सकते हैं, बताइए कि आपने इस टाइम पे प्रेजेंट करना है। और कोई भी आपके पास इतने आजकल तो काफी ज्यादा ये फ्री सेशंस होंगे अभी एग्जाम के करीब, तो जो हो उसमें अवेल करें उसमें, और उसको अटेंड करें, क्योंकि आपको प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, वो भी किसी और के साथ, नए मेंटर के साथ। हाँ तो कुछ तो एग्जैक्टली। वो आपको फीडबैक देगा, कुछ तो वो आपको हम्म। बताएगा ना कि आप कैसा कर रहे हैं। तो आपका एम ये कि आपने बस नए लोगों के साथ करना है। जबरदस्त। चलें ठीक हो डॉक्टर गया। अच्छा, ये जो स्टेशन सामने नजर आ रहा है, यू वांट दैट के एनी वन अमंग अस विल प्रेजेंट इट? हाँ बिल्कुल, अगर कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है। ये अगर ओके। कोई मुझे पर्सनली वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड करता चाहता है, यहाँ पे नहीं करना चाहता, कि हाँ हाँ, पर मुझे भी नहीं किया था, पर्सनली तो के लिए आप मैं ऐसा इन कर हूँ। लें पर्सनली कि के आप मैं इन हूँ। रिकॉर्डिंग में भेज डॉक्टर दें। डॉक्टर साहब, आप ऐसा कर सकती हैं, अपना कोई ग्रुप बना लें और उस ग्रुप में आप टास्क पोस्ट कर दें और हम रिकॉर्ड करके भेज दें, और जब आपके पास टाइम हो तो आप उस पर फीडबैक दे दें। मुझे लगता है कि ज़्यादा हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा और ये आपके वैसे लिए भी। कन्वीनियंट है, हाँ, बाकी सब लोगों के लिए भी शायद।
हाँ ठीक है, हम्म। बिल्कुल, फिर ऐसा कर लेते हैं, हम एक ग्रुप बना लेते हैं कि छोटा सा ग्रुप होगा जिसमें जो है वो सबको हम टाइम दे सकें। ऐसा नहीं है कि, और जब आपको लगता है कि आपको कन्वीनियंट है आप उसको रिकॉर्ड करें और आप उसको सेंड कर दें। हाँ, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, है। उससे जबरदस्त हो डॉक्टर गया अक्सर ये तो। एक जो टास्क वाइज जो है ना, कि इस मॉड्यूल में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, या कोई मिस नहीं होगा फिर एटलीस्ट, सब हाँ यानी वो हो जाएगा कि इसमें आपने ये चीजें कवर करनी है, इस मॉड्यूल की ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं और एज अ केस ये आ सकती हैं, ये थोड़ा फायदा हो बिल्कुल। जाएगा। हाँ बिल्कुल, इस तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि ये आप सबके, क्योंकि हो सकता सबको प्रेजेंट करना है काफी लोगों के सामने, आज मुश्किल हो जाए लेकिन कुछ टाइम के बाद आप लोग भी परफेक्ट हो जाएंगे और आप कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करेंगे फिर। इंशाल्लाह। एक थोड़ा सा इंशाल्लाह। स्टार्ट इनिशिएट करते हुए, वैसे थोड़े से मैंने किया था, लेकिन ना मुझे तो अभी भी हेजिटेशन हो रही है, लेकिन वो पहले रिकॉर्डेड जब भेज देंगे ना फिर इंशाल्लाह लाइव भी कर देंगे, तो हाँ अगर वो नहीं नहीं, स्टार्ट बिल्कुल कर इसी लेना तरीके कि। से कर लेते हैं, क्योंकि आप मेजोरिटी आप लोग ये चाह रहे हैं कि आप लोग को ये अच्छा लगता है कि इस तरीके से आप लोग की लर्निंग होगी, तो बिल्कुल हम ऐसे ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखना स्टार्ट ये उस कि तरह एट द कर एंड देते आप हैं किस फिर। में कंफर्टेबल है और आपको क्या लगता है कि किस हम्म। तरीके से आप लर्न ज्यादा करेंगे, यही इम्पोर्टेंट है ना चीज। ये तो नहीं है कि, और जब आपको पता चल जाएगा एक दो दफा आप यूज हो जाएंगे फिर आपके लिए कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ देखें कि इंट्रोडक्शन की इधर एक बात कर लेती हूँ कि इंट्रोडक्शन आपने हम्म। कैसे करना होता है। ठीक है, कोई भी आपका स्टेशन आता है, हेलो आई एम डॉक्टर अक्सर, वन ऑफ द ST5। अब देखो आपका जब आप लिखा हुआ होता है ना, तो आपके पास लिखा हुआ होता है कि यूर ST5 इन द गायनोकोलॉजी क्लिनिक। तो आपने क्लियरली बोलना होता है कि हेलो आई एम डॉक्टर अक्सर, वन ऑफ द डॉक्टर्स इन द गायनी क्लिनिक टुडे। तो उससे क्या पता चलता है एग्जामिनर को कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है, आपने अटेंटिवली, आप फोकस होके चल रहे हैं। वरना आप ये भी बोल सकते, अगर चले लेट सपोज आप भूल गए क्लिनिक का, ठीक है, आप भूल गए कि आप किस क्लिनिक में, तो आप ये बोल सकते हैं हेलो आई एम वन ऑफ अक्सर, वन ऑफ द डॉक्टर्स इन द क्लिनिक टुडे। क्योंकि आप क्लिनिक का नाम भूल गए, गलत बोलने से बेहतर है कि आप बोल दीजिए कि आई एम द क्लिनिक टुडे। कौन सा क्लिनिक है, अच्छा ये होगा, अच्छा इंप्रेशन ये जाएगा कि आप क्लियरली बताएं कि आप कौन से क्लिनिक में हैं। लेकिन अगर भूल गए तो उससे उस पर घबराना नहीं है, आगे बढ़ जाना है, हम इन द क्लिनिक और फिर आगे चलिए। फिर जो भी वो कंप्लेन के साथ आई है, फिर आपने उसका कंफर्म किया, कैन आई कंफर्म योर नेम एंड एज प्लीज, फिर वो आपको बताएगी कि आई एम रेबिका जोन्स। अच्छा, फिर आपने अब वो बोलती है कि मेरा नाम रेबिका क्लर्क है या रेबिका जोन्स है, तो फिर उससे आपने ये पूछना है हाउ डू यू वांट मी टू एड्रेस यू। वो बोलेगी प्लीज कॉल मी जोन्स, प्लीज कॉल मी मिसेस रेबिका। वो आपको जो बोलेगी आपने फिर वही नाम से बोलना होगा। ये यहाँ से आपकी ये पेशेंट सेफ्टी और ये आपकी कम्युनिकेशन चल रही है अभी। फिर उसने आपको बता दिया, फिर उसने बोला आई हैव गॉन थ्रू योर नोट्स, या आई कैन सी फ्रॉम योर नोट्स that your result shows that the lining of the womb is this is, या आपको कोई भी, I can see from the notes that you're 6 weeks pregnant and you're having vaginal bleeding, is that correct? फिर वो बोलेगी yes, कैन यू टेल मी मोर अबाउट दैट। सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही होना चाहिए, कैन यू टेल मी मोर अबाउट दैट, क्योंकि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको सब कुछ बता देगी। फिर अगर वो कुछ मिस करती है, जैसे उसने आपको जो है LMP नहीं बताई, तो आपने कैन यू टेल मी अबाउट योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फिर आपने वो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने, क्योंकि आपने पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा, फिर आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, कैन यू टेल मी अबाउट योर LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, कैन हाउ मेनी किड्स यू हैव, नॉर्मल वजाइनल बर्थ और सिजेरियन सेक्शन। ये आपके फिर जो है आपके वो क्लोज क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये जरूर जरूर जो है अपने इंट्रोडक्शन के साथ पहले स्टार्ट करें। कि जब आप इंट्रोडक्शन, और ये हर स्टेशन में आपका इंट्रोडक्शन तो होना है, ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन में तो कोई मिस्टेक की गुंजाइश ही नहीं है। तो जो हर स्टेशन आप बोलेंगे आपका इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस होगा, आपकी पेशेंट सेफ्टी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी कम्युनिकेशन प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, तो आज से आपने ये छोड़, बेशक आज आप कुछ भी नहीं करते सिर्फ इंट्रोडक्शन करें, तो ये आपने बहुत बड़ा आज काम अचीव किया, आज का आपका टारगेट है। ठीक है, रोज छोटे छोटे टारगेट्स बनाए, लेकिन उसको कोशिश करें कि आपने उसको अचीव करना है। कि हम्म। कोई बड़ी बात नहीं, आप सबको हिस्ट्री लेने आती है, हिस्ट्री आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। मसला हमारा सिर्फ आता है कि हमें उसको वो बात कैसे करनी है, और इंशाल्लाह वो भी हम कर लेंगे। आप क्या चाह रहे हैं, कौन से मॉड्यूल से फिर हम फर्स्ट स्टार्ट करें, कोई किसी की कोई सजेशन है? अर्ली प्रेगनेंसी से कर। ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी, मैं खुद भी, आप बाकी सब अग्री करते हैं, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी जो है ना वो एक छोटा मॉड्यूल है,
और छोटा है इजी इजी, मॉड्यूल है हाँ। स्टार्ट करने में, सिर्फ ये बात है, इससे आपको क्योंकि स्ट्रेस में नहीं करना थोड़ा आपने सा स्टार्ट। कॉन्फिडेंस मिलेगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, एक इस कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने लेके चीजें कैसे चलनी है। ऑल्दो अर्ली प्रेगनेंसी बिल्कुल भी इजी नहीं है, ऐसा नहीं समझेगा कि अर्ली प्रेगनेंसी इजी मॉड्यूल है, अच्छा। क्योंकि ओके। अर्ली प्रेगनेंसी में है छोटी छोटी चीजें और काफी, कॉमन हाँ। टॉपिक्स हैं। कॉमन टॉपिक्स हैं और छोटी छोटी बातें कि जो आपने ना उसके ऊपर गौर फेलियर करना का होता है, वो चांस जब ज्यादा आपको है। बिल्कुल पता चलता है। हम्म। तो इंशाल्लाह हम ग्रुप बना लेते हैं और फिर उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एनी नहीं, आप क्वेश्चंस, एक किसी को कोई टास्क क्वेश्चंस असाइन हैं? कर दें, अर्ली प्रेगनेंसी से रेलेवेंट जो है, टास्क ओके, 1 या कोई इस तरह जी जी करके, बिल्कुल, तो सारे फिर पिल्स इंशाल्लाह। और ये सारी जो है वो चीजें शेयर करते हैं। हम्म। थैंक यू सो मच। थैंक बहुत बहुत यू। ज्यादा अच्छा आपने बताया डॉक्टर साहब, थैंक यू अगेन। नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू सो डॉक्टर मच। किसी साहब। को मुझे तो कोई भी बहुत फायदा हुआ कंफ्यूजन हो है। जरूर प्लीज, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज जरूर ग्रुप पे पोस्ट कीजिएगा। और जैसे ही आप लोग को टाइम मिलता है अपने कन्वीनियंट से प्लीज पोस्ट करें, क्योंकि देखिए एफर्ट्स आपके लिए की जा रही हैं, जब आप अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे तो हम जो भी हम सबको खुशी होगी कि आप हमारा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं हो रहा, हमारी एफर्ट्स जो है वो मेहनत जो है वो काम आ रही है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं और मारिया ट्विन है बड़े, इंशाल्लाह। बस अब पास करा दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस मेहनत हम नहीं, अपनी मेरा तो करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं डेली ना जो रूटीन जो है स्केड्यूल वो भी फॉलो करूंगी, और इंशाल्लाह जी होप जी सो बिल्कुल। अच्छा फाइनल होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं आपकी अच्छी ओ, स्टूडेंट साबित होंगी, आप देखेगा। इंशाल्लाह आज चले ठीक है, ठीक देखते है। हैं कौन अच्छा। ओके। ठीक है, ओके, चलिए इंशाल्लाह। ठीक है। ओके। इंशाल्लाह, ओके, थैंक यू, थैंक यू अच्छा, सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, अल्लाह ओके। हाफिज।